5 दिन में आपने जो देखा, जो महसूस किया, वो क्या प्रभाव क्या है आपके? अगर मोदी आएगा हम उसको काला मुंह भी कर सकते हैं, काला मुंह भी कर सकते हैं हम, और इसको यहाँ से उखाड़ के जाएंगे दिल्ली से। उससे पहले जब तक ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तक आपकी जो सोच है या कह लो आपके लिए पंजाबी लोग कैसे थे? जट और जट्टा के बीच कोई फर्क ही नहीं होता है, यही तो बात हमने समझाई है। अब एक बार फिर जो केंद्र की सरकार है, जो बहुत सारी ताकतें हैं हमें तोड़ने के लिए, वो SYL का मुद्दा उठा रहे हैं। अत्याचारी अत्याचार करने पे मजबूर होता है ना, तो उतना ही मजबूत सहने वाला भी होता है। पानी का कोई समस्या ही नहीं है। अगर जिस दिन हल करेगा ना, वो किसान मिल के करेगा, सरकार तय नहीं कर सकती। लेकिन बापूजी, अगर दोबारा से ये सियासतदान आपके घरों में आकर फिर से बंटवारे की बातें करेंगे, फिर से आपको पंजाबियों के बारे में कुछ उल जुलूल बातें करना शुरू करेंगे, तो क्या सहन कर लेंगे? ये SYL का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम इनके बगाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, ये तो सारा अंबानी और अडानी के ऊपर खेल चल रहा है। बाकी यो मुख्यमंत्री नहीं है हमारा, इसका कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है, कोई उपलब्धि थोड़ी थी। सिर्फ RSS वालों की रोटी पोया करता रसोईया था। ये अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਰੌਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲੇ ਹੁੱਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੰਡੀ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ, ਕੋਈ ਮਾਸੜ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹੁੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਪੈਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ लगता भी इसे हुक्के की गल चलती है। ठीक ठाक हो जी, जिंदाबाद हो? बिल्कुल। देखो, आपकी पंजाबी कैसी है? 56 साल के बाद जब कोई भाई अपने पास आता है तो हमारे तो सीने चौड़े हो गए हैं। और जिस तरह से सत्ता ने, यहाँ के कृषि मंत्री ने इसी नाजुक समय पे भाईचारा तोड़ने के लिए SYL का मुद्दा उठाया,
महम से शमशेर खड़गड़ा ने 25 तारीख को महम के चबूतरे पे एक पंचायत का एक झूठा आह्वान किया, जिसका यहाँ बहिष्कार भी किसानों ने किया। और जो पतंजलि के नाम से जिस 1.5 लंगोटिया बाबा को, पौने आँख वाले बाबा को, जो कभी राष्ट्रवाद की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, जिसको आज विश्व के सिरमौर उद्योगपतियों में शामिल किया, आज वो रिलायंस के साथ, वॉलमार्ट के साथ, आज वो 600 से ज़्यादा उनके रिटेल आउटलेट्स बन चुके हैं हर स्टेट में। तो आज वो Z+ सिक्योरिटी लिए बैठे हैं, राज्यपालों की नियुक्ति कराते हैं। जब किसान इन बिलों से लड़ रहा है तो इस किसानों के विरुद्ध उनका दुष्प्रचार यहाँ तक आ गया कि उन्होंने अपनी पूरी टीम हरियाणा में उतार दी है कि SYL का मुद्दा उठाइए। SYL का मुद्दा मैं कहता हूँ इन सत्ताओं से, आप एमिकस क्यूरी बना दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, 15-15 किसान बैठ लेते हैं, हम आधे घंटे में इसका निपटारा कर लेंगे। आप ये बताइए कि आपकी पंजाबी कैसी है? आप पंजाबी बोल लेते हो, समझ लेते हो? आपकी पंजाबी जैसी है, मेरी हिंदी वैसी है। मेरी हिंदी पंक्चर है थोड़ी सी। आप ये बताइए कि बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा और पंजाब के किसान इस तरीके से बैठे हैं। जब पंजाब और हरियाणा का मुद्दा बनता है कि SYL का, हमें तो जी चंडीगढ़ का प्रॉब्लम आ गई, हमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, ये बात आप मानते हो यहाँ बैठ कर के कोई मुद्दा है? या आज आपके भी खेतों को छीनने की कोशिश की जा रही है? आप क्या सोचते हो? ये तो जो हमारा हरियाणा पंजाब का भाईचारा है, ये हमारा मसला है। ये केंद्र सरकार का कोई और नहीं, हम बैठ चल कर हरियाणा पंजाब का भाईचारा आप हल कर लेंगे। ये एकता है, किसान एकता है, और इसको जो हम हक लेकर रहेंगे। छोटू राम जी ने हमें एक सबक सिखाया था कि लाहौर से लेके और बंगाल तक जिसके पसीने में मेहनत से खेत में पसीना बहाते हैं, उसकी खुशबू आती है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है। आज सत्ता ने पंजाब और हरियाणा को अलग अलग रखा था, लेकिन किसान शब्द ने जोड़ा है। और जब हम एक सामूहिक रूप से अपने हक के लिए, ये विश्व स्तर का एक आंदोलन बन चुका है, तो जब सरकार के पास, कभी मेन मीडिया के पास ये समय नहीं होगा कि इस भाईचारे को दिखाए, कभी मेन मीडिया के पास ये नहीं होगा कि हरियाणा के भाइयों ने राशन से और सब तरह की सहायताएं अपने पंजाबी भाइयों के लिए की है। नहीं, हम आपके बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, इस ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾ सकता। हरमन जी, तुसी गल करो। सवाल पूछना चाहनी है भाई जी, मुझे एक सवाल का जवाब जरूर देना है कि इससे पहले, जब तक ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तक आपकी जो सोच है, या कह लो आपके लिए पंजाबी लोग कैसे थे? ऐसा है, जिस हिंदुत्व को अपने 10 सिख गुरुओं के सिर कटा के जिस हिंदुत्व को बचाया था, भाजपा उसी हिंदुत्व के प्रचार करके तो सत्ता में आई थी। आज जो बॉर्डर पे जो गैलेंट्री अवार्ड है, आज हरियाणा का लड़का लेता है या पंजाब का लड़का लेता है, तो जट और जट्टा के बीच कोई फ़र्क ही नहीं होता है। यही तो बात हमने समझाई है। और ये मैं कहता हूँ, ये वो मार्शल कौम है। अंग्रेज़ ने भी इतिहास में लिखा है कि दिल्ली के तरफ जब ये अजगर इकट्ठा हो गया तो सत्ताएं पलटी जाएंगी। तो मोदी जी अहंकार को छोड़े। आज जिस बाबा जी ने इस भाईचारे को तोड़ने के लिए अपनी पूरी टीम में उतारी थी, आज उसका सलवार के साथ यहाँ पुतला टंग रहा है। और पूरे प्रदेश और देश के किसानों से एक अपील है, पतंजलि के शहद में मिलावट, इनके विचारों में मिलावट, इनके चरित्र में मिलावट, तो इनके प्रोडक्ट का आज से पूरे देश में बहिष्कार करते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या आपने पहले, इससे पहले ये सोचा था कि कभी पंजाब और हरियाणा के लोग इस तरह एक जगह पर इकट्ठे होकर एक ही थाली में खाना खाएंगे? ये एक ही थाली में शुरू से एक ही जगह थे जी। ये इन्होंने काले अंग्रेजों ने अलग किया था इनको। ये सारे इस काले कानूनों के कारण ये सारे एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो इन्हें 3 काले कानून लगाए हैं नहीं, इन्हें को लिए सारा किसान मजदूर एक जगह है। नहीं, आप ये बताइए कि अब एक बार फिर जो केंद्र की सरकार है, जो बहुत सारी ताकतें हैं हमें तोड़ने के लिए, वो SYL का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया तो क्या आप भाईचारे की एकता तोड़ दोगे, या आप समझोगे कि ये राजनीति है और हम राजनीति के चक्कर में नहीं फंसेंगे? जब जब अत्याचारी अत्याचार करने पे मजबूर होता है ना, तो उतना ही मजबूत सहने वाला भी होता है।
अगर एक कदम सरकार किसानों के आंदोलन को खंडित करने की कोशिश करे, तरफ बढ़ाएगी, तो किसान उतनी मजबूती से सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं, मेरा मगर सवाल ये था कि अगर SYL का मुद्दा अब उठ गया तो क्या आप इसी तरीके से पंजाबियों के साथ प्यार के साथ रहोगे या फिर बंट जाओगे? ये पानी का कोई समस्या ही नहीं है। अगर जिस दिन हल करेगा ना, वो किसान मिल के करेगा, सरकार तय नहीं कर सकती, और ना ये सरकार का कोई मनसा है। अभी तक तो पानी के नाम पर हम बंटते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एकजुट है और एकजुट रहेंगे। पानी अगर थोड़ा उधर ज्यादा रहेगा तभी भी कोई बात नहीं, थोड़ा इधर ज्यादा आ गया तभी बैठ के निपटाएंगे इसको। यह है जी, यदि पंजाब हरियाणा ने भाईचारा समझे है नहीं, तो पंजाब ने पानी देना चाहिए भाईचारा का हिसाब लेकर। बैठ के निपटेंगे, लेकिन ये आंदोलन में पूरे देश का है, ना हरियाणा का है ना पंजाब का है। हम राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, तब आवाज उठती है, उसको दबाने की कोशिश होती है। ये एक पहली थी उनकी। तो लेकिन बापूजी, अगर दोबारा से ये सियासतदान आपके घरों में आकर फिर से बंटवारे की बातें करेंगे, फिर से आपको पंजाबियों के बारे में कुछ उल जुलूल बातें करना शुरू करेंगे, तो क्या सहन कर लेंगे? बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम पंजाब और हरियाणा के किसान एक हैं और एक रहेंगे। ठीक, ये SYL का जो मुद्दा उठा रहे, ये सिर्फ हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम इनके बगाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक, और हम जो ये 3 काले कानून हैं उसके बारे में आए हुए हैं यहाँ, और वो देकर रहेंगे। वो हमारा हक है, धरती हमारी माता है। ठीक, और हमारी माता को अगर हमारे से कोई छीनेगा तो उसको बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। सीमा पे जवान और खेत में किसान, सीमा पे जो जवान बैठे वो भी हमारे बेटे हैं। ठीक, और हम किसान हैं, वो हमने उनको आगे भेज रखा है सीमा पे। वो सीमा की रुखवाली करते हैं, हम खेतों की रुखवाली करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक 6-7 बार उनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश हुई है, लेकिन वो कोई हल निकालने को तैयार नहीं। क्या लगता है सरकार झुकेगी? मैं बताऊं, आपने मोदी और खट्टर, अमित शाह, इनका तो औलाद है नहीं। ये आप जैसे हमारे को समझते हैं। ठीक, ये इनका तो एक पेट है, हमारा तो हजारों पेट है। ठीक, इन्होंने तो ये राजनीति दोगलेपन से उठाई है। ठीक, लोगों को मंदारी का तमाशा डुगडुगिया बताया और बकाया में आगे 15 लाख रुपए देंगे, तुम्हारे खातों में आ जाएंगे। जो कि हमारी बहन बेटियों से, जो कि बेचारी पास में पैसे रखती थी, वो नोटबंदी करके वो और कटवा लिए, छीन लिए। ठीक, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। ये तो सारा अंबानी और अडानी के ऊपर खेल चल रहा है। ठीक, 32 हेलीकॉप्टर, बिहार में इलेक्शन होया, 32 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। वो किसके चल रहे थे? वो अंबानी और अडानी के चल रहे थे। ये हमारी क्यों मानेंगे? ये अंबानी और अडानी के भंडार बन के तैयार हो रहे हैं, आपको पता है। उनको बढ़ने के लिए हमारे से ही सस्ते भाव में खरीद के फिर उसका स्टॉक करके और जनता को भूख मारने का काम कर रहे हैं। मगर हमारा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि ये जो किसान है ये तो गुमराह हो गए हैं। आप तो हरियाणा से ही हो, आप हरियाणा से हो, आप गुमराह होके आए हो या अपने मन से आए हो? अपने मन का ही। हाँ जी। आपको तो मुख्यमंत्री ये बोलते हैं आपके सूबे के कि ये तो जी किसान गुमराह हैं, इनको तो विरोधी पार्टियों ने भड़का दिया। कहाँ भड़का रखा है? भैया मुझे तो दिखा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार तो जानबूझ कर बोल रही है, इसीलिए बोल रही है सरकार हरियाणा पंजाब का भाईचारा टूट जाए, और एक इसीलिए बोल रही है कि सरकार ये कानून तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार तो थोड़ा दोगलापन करिए। SYL का मुद्दा, SYL का मुद्दा कहाँ है इसके बीच में? SYL का मुद्दा तो फंड बना रहे हैं अभी। आपकी बहुत सी हरियाणा की खाप पंचायतें हैं जिन्होंने ये बोला कि हम JJP जो जन नायक जनता पार्टी है उनके जो विधायक हैं उनको समर्थन वापस लेने के लिए बोलेंगे। आप इस बात से सहमत हो या नहीं? हाँ जी, सहमत। हाँ जी, सहमत, बिल्कुल सहमत। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि इस मामले पर हरियाणा की सरकार गिर सकती है? सही गिर सका जी, बिल्कुल। कुछ नहीं करे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करे हमारा कत्ल।
हमारे तो वोट मांगने के एतराज है, बिल्कुल बकारे है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपके वहाँ की जो पंचायतें हैं या लोग हैं वो अभी तक समर्थन में है उनकी, वो उनको जाके बोला है कि हमें कोई तंगी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, आप ये कानून लागू कर दो। सारी सुविधा है जी, कोई तंगी नहीं। जो जेजेपी है वो भी हमने पका के वोट लेगी जी, बिल्कुल लेगी। नहीं, ये बताओ, आपके बहुत लंबे समय के बाद देश में ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें इतने बड़े सत्र पर लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको लगता है कि अब साजिशें चल रही हैं? आपको लगता है कि अब आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं? ये कितनी कोशिश कर लो, ये किसान आंदोलन हरियाणा, ये पंजाब का कभी कहते हैं, कभी हरियाणा का, हम तो ये कहते हैं पूरा देश का जन आंदोलन बन गया। अगर सरकार की ये नहीं समझ में आती तो कुछ समय बाद आ जाएगी। वो हमारे देश की भाषा में है, राजी खुशी ना मानना का तो दूसरे डालते मना देंगे। आप सच्चे मन से बताओ कि जब से पैदा हुए हो बापूजी, आप जब से पैदा हुए हो, कभी इतने प्यार से हरियाणा के और पंजाब के किसान भाइयों को एक तरफ इकट्ठे बैठकर एक ही थाली में खाते, एक ही प्रांत में आटा गूंथते हुए देखा है कभी कि नहीं? पहले भी बहुत बार देखा है, जब पंजाब और हरियाणा तो बाद में अलग अलग हुए हैं 1966 में। हाँ, पहले एक ही था, ठीक, और हम इकट्ठे ही बैठते थे, इकट्ठे ही रहते थे, ठीक। ये तो बंटवारा हो गया तो हम इधर आ गए, वो इधर चले गए। इसमें कोई नहीं, दो भाई पैदा होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, ठीक। इसमें तो ये तो सरकार बरगलाने वाला काम कर रही है, और हम पंजाब हरियाणा हमारा भाईचारा अमल है और अमल रहेगा। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की 2 बार कोशिश हो चुकी, जो बार बार ये एसवाइल का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी हकीकत बताएं तो वो मुआवजा भी वापस, जो नहर आनी, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है आज पंजाब हरियाणा का 2 मुद्दा उठा रहा है, इसको पूछने वाला वो ये कहाँ से आया है? ये पाकिस्तानी है, असल में पूछा जाए तो ये पाकिस्तानी है, और गद्दियों पर बर्तन लाद के आए थे, और आज दो की बर्तन मांजा कर दे, आज वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, उसको गुमान हो गया। आप ना प्लीज़, मेरी बेनती है कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि ऐसे ना पूरी कार्रवाई नहीं होती, बातचीत में होने में प्रॉब्लम आती है। तो हरमन जी, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏਗੜੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ। बापू जी, आप बोलोगे थोड़ा सा, क्या हाल है? कितने दिनों से यहाँ पर हो? 4 दिन हो गए। आपकी उम्र कितनी है? 60-65 की ला ले। 60-65 की। इससे पहले कितनी बार पंजाबी भाइयों से आप इस तरीके से बैठे हो जिस तरीके से आज बैठे हो? पहला को नहीं इकट्ठे, पहला धरना था हमारा जींद, और तो है। हाँ, पंजाब और हरियाणा के लोगों को आपस में कई बार लड़ाया भी गया, कई बार बांटा भी गया, मगर अब जब आप यहाँ बैठकर इकट्ठे खाते हो, इकट्ठे पीते हो, इकट्ठे बातें करते हो तो कैसा महसूस होता है? और जमा सही चल रहा हमारा तो जमा बढ़िया। मन में खुशी होती है जब दोनों भाई एक साथ बैठ के पंजाब और हरियाणा खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख एक दूसरे से कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है? तो नहीं खुशी हो रही मामने तो जमा खूब हो रही है। हाँ हाँ, खूब हो रही है। हरियाणा पंजाब खट्टा होना हम तो घनी खुशी है। अगर इन सियासतदानों ने दोबारा बांटने की कोशिश की तो क्या लगता है ये लोग कामयाब हो पाएंगे या नहीं? और होंगे इतने थोड़े उठा नहीं, अगर ये लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे तो क्या उनको कामयाब होने दोगे? ना, हम क्यों बढ़ाएंगे, खट्टे रहेंगे हम तो। हम बढ़ने की तो सोचे हैं, पाड़े हम न्यारे फिर खट्टे रहेंगे हम। हाँ, कदे क्या है इकट्ठा। हरमन जी, जिवें जिवें ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਜਰਾ ਲਾ ਸੀਫ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਸੱਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ ठीक सब है। कितनी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए? मन 12 दिन। पूरे 12 दिन हो गए? 12 दिन।
आपकी उम्र कितनी है? 71 साल है। तो आपने अभी जो 71 साल की उम्र में जैसे आप देख रहे हो पंजाबियों और हरियाणवियों को एक साथ बैठ के बातें करते हुए, इससे पहले कभी देखा था? नहीं जी, कोई नहीं देखा था। पहले कदे नहीं मारी गई, होया जो करीब हो गया आज। क्या मानते हो कि पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग जो इस तरह एक दूसरे से पहले देखते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे, क्या कारण था मेन इसके पीछे? मैंने के वो अपना खाओ कमा दे, हम अपना खाओ कमावा दे। फिर ये जो 3 कानून लाए हैं, ये तो बर्बाद करने के आगे। ये मानते हो कि इस सियासत ने हम लोगों को बांट दिया? सरकार तो मारा बांट दिया। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਮਨ ਜੀ कि मैं ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ हैं। नहीं, इसमें कोई नशा वशा भी होता है कि ये वैसे ही है? नहीं, नशा नहीं होता भैया, नशा नहीं होता इसमें। पर ये अगर धुआं अंदर जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सेहत की? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल। भोजन पचाने का काम कर रहे हो, उसका हमारा जो खाना खाने के बाद पचाने का काम करता है। हाँ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਸੀਗਾ, मैं तो बड़का मारन लग जानियां सी। नहीं भाई जी, आपके वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी हरियाणा नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ के रीति रिवाज। हाँ, नहीं मतलब आपके गांव वगैरह में कभी नहीं गई हूँ, तो ये हुक्का सब लोग हरियाणा में हर घर में मिलेगा एक हुक्का, बहुत बड़ा हुक्का जी, हर घर में वो बड़ा मिलेगा। हरियाणा की शान हुक्का, शान हरियाणा की हुक्का। अच्छा, हरियाणा की शान है हुक्का। हमें तो हम अपने प्यार पर मान होना चाहिए, हुक्के पर तो बाद में है, पहले तो हमारी शान प्यार मोहब्बत है। इस हुक्के के दम पे सुलझाई जाती हैं। 5 पंचों का प्याला बोला जाता है तो हुक्के को बोला जाता है। इसके सारे बड़ी बड़ी पंचायतों का समाधान होता है। तो आप क्या बोलोगे? न्याय प्रणाली है ना जो जनाब, खापों की हरियाणा में कल्चर है जो बहुत बड़े बड़े 306 के भी 306 के भी 376 तक के मामले पंचायतों के द्वारा सुलझाए जाते हैं। इस हुक्के में बैठ के ये सभी का साझे का प्रतीक है, ये किसी एक आदमी का नहीं होता जनाब। चलो, ये हमने नई बात सुनी है। कस्में भी खाई जाती हैं, हुक्के की नेम और कस्में भी खाई जाती हैं। गीता की तरह हुक्के पे हाथ रख दो, गीता की तरह वो कसम मानी जाती है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा जिसने ऐसे हुक्के पे। सदियों से इसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है जनाब, गीता की तरह। हाँ, है ना। आप लोग इसको, अग्नि भी है, पानी भी है, 5 तत्व इसके अंदर, लकड़ी भी है, 5 तत्व है इसके अंदर, पानी है इसमें, सभी तत्व। नहीं, हमें ये बताइए कि आप जब यहाँ पंजाब के किसानों की भी ट्रालियाँ लगी हुई हैं, आपकी भी लगी हुई हैं, मसला एक जैसा है, तो आप जब पंजाब के भाइयों से मिले तो आपके मन में सच में क्या था? आपके मन में क्या ख्याल आता है कि अभी तक हम वैसे ही बंटे रहे? आदमी हैं जनाब, उनको बहुत दिनों से इंतजार था कोई ऐसा मूवमेंट हो कि हमारा भाईचारा बना रहे, क्योंकि पहले संयुक्त पंजाब था, पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। बीच में जो सियासतदान आए, राजनीति इस तरह की हुई हरियाणा में, पंजाब में, कि इनको बांटने का काम किया और बार बार बांटा। आप 47 में देखो, पंजाब को बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया। 66 में हरियाणा अलग कर दिया, पंजाब अलग कर दिया। इनको क्या था कि दिल्ली के जो आसपास बसने वाले लोग हैं, इनको जितना बांटोगे इतना आसान होगा इनकी ताकत को राज करना। इसलिए इनकी ताकत को बांटने के साथ साथ इन्होंने एक प्री प्लान, हर सरकार ने, सियासतदानों ने जानबूझ के इस तरह के प्रोपेगेंडे करे और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन अब समय बदल चुका है। हुक्का पंजाब में जाएगा, पगड़ी हरियाणा में आएगी। हरियाणा लगातार सिखिज्म की ओर बढ़ रहा है जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पंजाब और हरियाणा एक साथ इकट्ठे हुए तो किसी की आंखों से आंसू भी छलके, कोई भावुक भी हुए। हाँ, आंसू टपकन लग गए थे जब दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, ज्यादा दिन में मिले हैं, तो उसमें जो करे प्यार के आंसू आते हैं ना, नो प्यार के आंसू तो आएंगे जब दो भाई इकट्ठे मिलेंगे, ज्यादा दिन हो जाए जब। मैंने तो ये भी सुना है कि जो आप लोगों की औरतें हैं, जो वहाँ की औरतें हैं रहने वाली, वो पंजाब की औरतों को गले मिल रही थी, वो भी एक दूसरे के गले लग के भावुक हो रही थी। हाँ, ये सच्ची बात है एक। हाँ, तो मतलब ये चीज कभी भी भूली नहीं जा सकती। हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन का एक जो सही पक्ष ये भी रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा अभी तक अलग था, वो एक साथ हो गया, इकट्ठा हो गया है, एकजुट हो गया है। दोनों भाई, बड़ा भाई पंजाब, छोटा भाई हरियाणा, एक इकट्ठा हो गया है। तो ये जितने भी राजनीति वाले हैं ना, इनने 2 फाड़ कर दी थी, ये भी इकट्ठे हो गए हैं।
ये किसी से नहीं डरेंगे, कितनी सरकार आती हो इसका सबका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई साहब आप ये बताइए कि कौन से गांव से हो और कितनी देर से यहाँ हो? मैं गाँव सांगी डिस्ट्रिक्ट रोहतक और मैं 5 दिन से यहाँ हूँ। तो 5 दिन में आपने जो देखा, जो महसूस किया, वो क्या प्रभाव क्या है आपके? हमारे प्रभाव है, इस सरकार ने हमारा सत्यानाश उठा दिया बिल्कुल। मोदी ने, अगर मोदी आएगा हम उसको काला मुंह भी कर सकते हैं, काला मुंह भी कर सकते हैं हम, और इसको यहाँ से उखाड़ के जाएंगे दिल्ली से। आगे हम तो बच्चों को भी ये सलाह देंगे, मतलब इनके साथ कभी भी जिंदगी में मत लगाना। अच्छा हाँ। तो आपके जेड़े सूबे के मुख्यमंत्री तो बोलते हो कि ये गुमराह हो गए हैं, ये तो बंटे हुए हैं, ये तो साजिशकर्ताओं ने भेजे हुए हैं। आप किसी साजिश के तहत आए हो? किसी साजिश के तहत नहीं आए, हम खुद किसान हैं। कोई पार्टी का हमारे अंदर कोई कोई बंदा मतलब नहीं आया हुआ यहाँ, नहीं, हमने अपनी मर्जी से आए यहाँ हुए। तो जब आप यहाँ बैठे हो तो कोई गाना भी सुनते होगे, कोई गाना गुनगुनाते भी होगे, कोई बोलियां भी चलती होंगी, कुछ है ऐसा कोई आपको याद? जैसे हमारे उधर पंजाब में तो बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं जो किसानों के लिए हैं, जो किसानों में जोश भरने के लिए हैं। आप लोगों के भी बहुत सारे गाने ऐसे आए होंगे। हाँ, कोई एक जी, कोई एक गाना सुना दीजिए। आप कोई गाना नहीं, कोई बोली आती हो जो आप में जोश भरती हो, हरियाणवी भाइयों के अंदर जोश भरती हो, बस चक देंगे फटे नप देंगे के लिए हो जी कड़ा है, हम दिल्ली आगे आगे। हाँ, बाकी यो मुख्यमंत्री नहीं है हमारा, इसका कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है, कोई उपलब्धि थोड़ी थी। सिर्फ RSS वालों की रोटी पोया करता, रसोईया था। ये अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, है अच्छा रसोईया हो सकता है। वो ठीक है, वो ठीक है, मगर कोई ना कोई गुनगुना तो दो ना गाना। गाना तो जी हमें पता लगे कि आप अपने हरियाणा का कोई लोकगीत सुना दीजिए। भगत सिंह के बारे में हम सुनाएंगे। सो पड़े मुसीबत बेटा अमर नदान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। बाबूजी, आपको तो बहुत से गाने आते होंगे, कोई लोकगीत हरियाणा के, कोई पुराने गाने जो आप सुनते होंगे। रागनी गाया रहा लोकगीत रागनी, वो बहुत कम आएंगे। वो रागनी खत्म हो चुकी है हमारे हरियाणा से लगातार। वो पंजाबी नहीं सर। आप लोग पंजाबी गाने सुनते हो? जी मैम, लेकिन याद नहीं होगा कोई। हाँ, समझ आ जाए। आप बात करो वो भी आएगी समझ में। बोल नहीं सकते जी मैम। हाँ। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, मेरी तो जीभ पलट गई, ऐसे हो गई हिंदी बोल बोल के। साडी तो जीव ਨੂੰ ਵਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। हरियाणवी सिखाओगे जरूर बोलांगे। भोजन इकट्ठे करते हैं सारे, भोजन भी इकट्ठे करते हैं हम तो सारे। बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है हम अपने भाइयों से मिलकर। हाँ, बहुत ज्यादा दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं। सेम कल्चर है, इतने दिन के बाद सेम हमारे गोत्र हैं, सेम हमारी जातियां हैं। सिर्फ समय के साथ वो सीखोगे, ये हिंदू में रह गए, इतना ही तो फर्क है। और धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। धर्म तो कपड़े की तरह है, जीगरा जब बदल लो, लेकिन नस्लों में खून एक है। जब यहाँ बात सुनते हैं, मैं पंजाबी च कहना, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ टीवी चैनल देखते ਐਂ लगता भी झगड़े तो बिना कुछ नहीं। बयान पढ़ते हैं हम, लोगों के बयान थोड़ी पढ़ते हैं, राजनीतिक आदमियों के बयान पढ़ते हैं हम। आपसी तो हमारे रिश्ते भी होते हैं। जींद साइड के तो आपने देखा होगा, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं पंजाब की। क्षेत्र के अम्बाड़ा, हमारा कल्चर कहाँ अलग है, सेम तो है। फिर इधर सिरसा साइड वाला। जब गुलाम भारत था उस टाइम पर जो वजीर था, संयुक्त पंजाब का प्रधानमंत्री वो बनता था, हयात खान चीमा, फजले हुसैन, उसकी वजारत में चौधरी छोटूराम थे, जिन्होंने ये जो आज जिस बात के लिए हम बैठे हैं, MSP मंडी कानून, सबसे पहले पंजाब में आया, संयुक्त पंजाब में। और सर छोटूराम लेके आए सन 1938 कृषि एक्ट में। उसी की लड़ाई, उसी को ये खत्म करने जा रहे। आप कितना पढ़े हो? मैं LLB। अच्छा, हाँ। तो वो तो ऐसे बोलते हो कि ये अनपढ़ किसान आए हैं, वो खुद अनपढ़ है। अब किसान अनपढ़ कहाँ रह रहा है? किसी घर में भी कोई अनपढ़ नहीं है। मोदी 8वीं फेल आदमी। हमारे यहाँ तो हर घर में MA, PhD, BTech, BA, B.Ed हर घर में। अब कहाँ अनपढ़ है? किसान का मतलब ये नहीं है कि आप अनपढ़ हो,
बहुत अच्छा लगा आपसे ना बातचीत करके। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਬੰਬ ਬੁਲਾਤੇ। हमारे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब मिल के, बहुत ही बढ़िया लगा हमारे को, बहुत बढ़िया। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਸਾਂਝ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਈਏ। भाईचारा नहीं टूटेगा जी, भाईचारे को तोड़ेंगे नहीं और जोड़ेंगे, बल्कि और जोड़ेंगे। पर भी इसका असर रहेगा कि हरियाणा पंजाब का किसान एक है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ हर प्रकार से तन मन धन हर प्रकार से तैयार है। यहाँ से उखाड़ के दम लेंगे मोदी को, हाँ उखाड़ के दम लेना हमने। हाँ यही शहीद हो गया था यहाँ, अगर नहीं कानून वापस हुए तो। आरएसएस वालों की, नागपुरी संतरियों की सरकार है, इनको पता नहीं था दिल्ली के चारों तरफ कौन सी कौम निवास कर रही है। धीरे धीरे पता लग रहा है। ਲਓ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। जी बाबू जी आप पंजाबी समझ लेते हो? नहीं समझ में नहीं। चलो आप हम दोनों को पहले तो आशीर्वाद दो अपना, और सारे पंजाबियों को आशीर्वाद दो, और दूसरा जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? किसान एकता, किसान एकता। हरियाणा पंजाब भाईचारा ਲਓ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਬੰਬ ਬੁਲਾਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਵਲਵਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਜਾਉਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।